everyone, welcome back to my channel. My name is Gupta and guys, today we'll be discussing section 9 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. Guys, so far we have covered an introductory lecture, then we have covered section 5 to 8 of this act. So guys, if you have not watched my previous lectures, especially in section number 6, 7 and 8, please go and watch them first before you watch it. Because guys, section 9 is in continuance of section 6. Section 6 basically talks about certain requisites of a valid adoption. As I've told you guys कि हर एक adoption law recognize नहीं करता क्योंकि हर एक adoption valid नहीं होती है. There are certain requisites, there are certain essentials which are to be fulfilled. Once they are fulfilled, वो adoption valid होती है and is recognized by law. क्योंकि वो law recognize उसको करता है तो उसका legal effect and legal consequences देखने को मिलते हैं. So guys, I've told you section 6 clearly बोलते हैं कि no adoption shall be valid unless the person adopting has the capacity to do so, unless the person giving in adoption has the capacity to do so. अब जो पहला section 6 का clause 1 है वो तुम already section 7 and 8 में discuss कर चुके हैं. If you watched my previous lectures आपको समझ आ रहा होगा. And second clause जो है section 6 का उसको हम आज discuss करेंगे और वो क्वेश्चन ये बनता है who may give in adoption. If you remember section 7 and 8 में हमने डिस्कस किया था who may take in adoption. आज का क्वेश्चन है who may give in adoption. कौन सा ऐसा इंसान है जो केपेबल है लॉ के नजरिए में एक बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए. हेंस सेक्शन 9 की जो हेडिंग है वो है पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन. सो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलते हैं कि कोई भी इंसान अदर देन फादर, मदर एंड गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट केपेबल of giving a child in adoption. So it clearly says that no person except father, mother or guardian of a child shall be competent or shall have capacity to give a child in adoption, as simple as that. So अगर father and mother alive हैं, अगर वो जिंदा हैं तो father and mother बच्चे को adoption में दे सकते हैं and after their death, after their demise, जो guardian होगा, legal guardian जो होगा उस बच्चे का वो उसको adoption में दे सकता है. So हम इन दोनों concepts को properly in detail discuss करेंगे guys. Father and mother here refers to biological father and mother. सबसे पहले important point यहाँ पे है कि father and mother refers to your natural parents, your biological father and mother. यहाँ पे हम लोग adoptive father या adoptive mother की बात नहीं करते हैं. Because guys, जिस बच्चे को already एक बार adoption में दे दिया गया वो दोबारा से अडॉप्ट नहीं हो सकता. A child once given in adoption cannot be further given in adoption. ये रूल है अडॉप्शन का. अगर एक बच्चे को एक बार अडॉप्ट कर लिया तो वो दोबारा से उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसको आगे अडॉप्शन में नहीं दे सकते. इसीलिए यहाँ पे वो अडॉप्टिव फादर एंड मदर केपेबल नहीं होते हैं ऑफ गिविंग अ चाइल्ड इन अडॉप्शन. यहाँ पे वी ओनली टॉक अबाउट बायोलॉजिकल और नेचुरल फादर एंड मदर. एंड गाइज अगर वो फादर एंड मदर अलाइव हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर अलाइव, देन दे शैल हैव इक्वल कैपेसिटी एंड इक्वल राइट टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन. जितना अधिकार एक फादर का है, जितना राइट एक फादर के पास है, उतना ही राइट एक मदर के पास होता है ऑफ गिविंग देयर सन और डॉटर एज द केस में बी इन अडॉप्शन. बट गाइस, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट फादर एंड मदर अगर दोनों जिंदा हैं तो वो अपनी मनमर्जी से बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दे सकते. दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ देयर स्पाउस बी इट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में बी, एंड दैट कंसेंट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज मैंडेटरी. हस्बैंड शैल टेक कंसेंट ऑफ हिज वाइफ and wife shall take consent of her husband before giving their child in adoption, be it son or daughter, and that consent has to be a valid consent. ये सारे requisites वही हैं जो हम section 7 and 8 में already discuss कर चुके हैं कि consent valid होना ज़रूरी है. अब वो valid consent के लिए वो free होना ज़रूरी है. फ्री कंसेंट मतलब जो वॉलंटरली आपने दिया और आपने विलफुल तरीके से दिया है. इट मस्ट नॉट बी इंड्यूस्ड बाय फोर्स, फ्रॉड, कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस. Moreover, that consent may be expressed or implied. I hope guys this thing is quite clear to you. और अगर consent आपने नहीं लिया, valid consent नहीं लिया guys, then that adoption shall be void. सेक्शन 5 क्लियरली कहता है, जब हमने सेक्शन 5 को डिस्कस किया था, कि अगर चैप्टर 2 के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन होगी तो वो अडॉप्शन वॉइड होगी. इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. उसका कोई लीगल कंसीक्वेंस या लीगल इफेक्ट नहीं होगा. तो इट इज डीम्ड कि वो बच्चे की अडॉप्शन नहीं हुई. तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि इफ बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव, इफ बोथ ऑफ देम आर अलाइव, दे शैल हैव इक्वल राइट ऑफ गिविंग देयर सन और डॉटर इन अडॉप्शन, provided each one has to take the consent of the other spouse, that to a valid consent. और जहाँ पे consent नहीं लिया वहाँ पे वो adoption void होगी. I hope guys this thing is quite clear to you. Moreover, आप consent लेना ज़रूरी है, but consent of your spouse may be dispensed with. आप उसको waive off कर सकते हो, आपको उसका consent लेने की ज़रूरत नहीं है अगर 3 requisites complete होती हैं. तो section 7 and 8 में already हम discuss कर चुके हैं. First is
that your spouse has ceased to be a Hindu by conversion to some other religion. हिंदुइज्म में नहीं रहे तो आपको उनका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. इफ दे हैव फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, संन्यास ले लिया, तो आपको उनके कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. होल सोल अपने बिहाफ पे आप बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हो. और इफ हस्बैंड और वाइफ एज द केस में बी हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, तब भी आपको उनका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. देयर कंसेंट में बी डिस्पेंस्ड विद इन दीज सर्कमस्टांसेस. अदरवाइज आपको उनका कंसेंट लेना है, और अगर नहीं लोगे दैट टू अ वैलिड कंसेंट. अगर कंसेंट नहीं होगा तो वो अडॉप्शन जो आपने दिया है या लिया है एज द केस में भी वो वॉइड होगी. आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. सो मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्जियन. फादर एंड मदर का यही सीन रहता है कि दे हैव टू बी बायोलॉजिकल पेरेंट्स, प्लस अगर वो अलाइव है तो उनके पास इक्वल राइट है. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द गार्जियन. अब गाइस गार्जियन कौन होता है? गार्जियन एज पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, गार्जियन इज अ पर्सन हु हैज द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनर, यानी कि माइनर्स पर्सन हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी. अगर आपने माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट मुझसे स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि गार्जियन क्या होता है और उसकी लीगल डेफिनेशन क्या होती है. वो इंसान जिसके पास माइनर का ख्याल रखना होता है, उसके प्रॉपर्टी का या दोनों चीज़ों का, माइनर्स पर्सन एंड प्रॉपर्टी, जो इंसान ख्याल रखता है इन द एब्सेंस ऑफ दैट चाइल्ड पेरेंट्स, तो वो इंसान गार्जियन होता है. अब गाइस यहाँ पे जो गार्जियन होगा वो टेस्टामेंट्री या फिर डी जॉरे गार्जियन होगा. एज यू नो कि एक बच्चे का जो नेचुरल गार्जियन होता है वो उसके फादर एंड मदर होते हैं. ऑलराइट, अब जब नेचुरल गार्जियन नहीं रहा उसी के बाद तो हमें गार्जियन की जरूरत पड़ी, तो वो कौन होगा? टेस्टामेंट्री, जो फादर एंड मदर के विल के थ्रू आया, उनकी वसीयत के थ्रू आया, या डी जॉरे गार्जियन जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन इफ हैज अपॉइंटेड सम गार्जियन टू टेक केयर ऑफ अ माइनर, तो वो इंसान डी जॉरे गार्जियन होता है. सो यहाँ पे गार्जियन रेफर्स टू टेस्टामेंट्री एंड डी जॉरे गार्जियन. अब गाइस पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि गार्जियन कब केपेबल होगा ऑफ गिविंग अ चाइल्ड इन अडॉप्शन? सबसे पहले तो जब उस बच्चे के फादर एंड मदर हैव डाइड. एज सिंपल एज दैट. फादर एंड मदर में से कोई भी अलाइव नहीं है. अगर एक भी जिंदा होगा तो क्योंकि नेचुरल गार्जियन जिंदा है तो टेस्टामेंट्री एंड डी जॉरे गार्जियन विल नॉट कम इनटू द पिक्चर. दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. इफ बोथ अ चाइल्ड्स पेरेंट्स हैव डाइड, तो गार्जियन क्या करेगा? विल स्टेप इनटू देयर शूज, और गार्जियन क्या कर सकता है? उसको अडॉप्शन में दे सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर फादर एंड मदर बोथ ऑफ देम हैव फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उस टाइम पे भी क्या होगा? फादर एंड मदर ने तो संन्यास ही ले लिया. दे हैव आइसोलेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, तो उनको अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे गार्जियन क्या कर सकता है? बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है. Thirdly guys, अगर फादर एंड मदर हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड. एंड फोर्थ, अगर फादर एंड मदर पता ही नहीं, बच्चा एक फाउंडलिंग है, कहीं से मिला है, या फिर बच्चा ऑर्फन है विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, या फिर बच्चा कोई रिफ्यूजी है, और अ चाइल्ड इज एन अबंडन्ड वन, रिलिंक्विश्ड वन, जिसको छोड़ ही दिया है. इट मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन. पेरेंट्स कौन है नहीं पता, उसका कोई भी रीजन हो सकता है. दैट चाइल्ड माइट हैव बीन अबंडन्ड, कोई छोड़ गया, फाउंडलिंग है, कहीं से मिल गया, या वो रिफ्यूजी है. तो उन सर्कमस्टांसेस में भी हम क्या कहेंगे कि गार्जियन विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ फादर एंड मदर, और वहां पे गार्जियन जो होगा वो कॉम्पिटेंट होगा टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन. सो आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. बट गाइस द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अगर आप देखो तो कहीं पे नहीं लिखा कि अगर फादर एंड मदर ने इफ दे हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू गिव देयर चाइल्ड इन अडॉप्शन. सो कहने का मतलब क्या है कि रिलीजन ऑफ अ फादर और अ मदर, अगर दोनों अलाइव है एंड दे हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन, is no ground to disqualify them to give their child in adoption. क्योंकि वो जो religion वाला word है ना, religion वाला point है, that has not empowered guardian to give a child in adoption. It means that has not disqualified father or mother to give their child in adoption. So this is the point to be noted. All right. अब गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गार्जियन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, उन सर्कमस्टांसेस में वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है, बट दैट टू विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट. क्योंकि वो आफ्टर ऑल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन नहीं है, फादर या मदर नहीं है तो वो गार्जियन, तो उसको कोर्ट की प्रायर परमिशन लेनी होगी. अब गाइस जब कोर्ट प्रायर परमिशन देता है तो उसमें कोर्ट को बहुत कुछ देखना होता है. कोर्ट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड इनफ कि जो एक अडॉप्शन होने जा रही है गार्जियन के द्वारा, इट हैज़ टू बी इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के वेलफेयर के लिए होगी. एक तो ये कोर्ट को चीज़ देखनी होती है. सेकेंडली, जब बच्चे को अडॉप्शन में दिया गया है, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ मनी इन हैंड.
कोई रिवॉर्ड, कोई पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ दैट अडॉप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें कोर्ट को देखनी होती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड, हमने देखा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में सेक्शन 13 में दैट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसीडरेशन। कोई भी चीज़ को कंसीडर करना है उसमें सबसे पहले बच्चे की वेलफेयर देखी जाएगी। अब उसकी वेलफेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विशेज ऑफ द चाइल्ड, एज ऑफ द चाइल्ड, जेंडर ऑफ द चाइल्ड, विशेज ऑफ द पेरेंट, और जिस अडॉप्टिव फैमिली को आप बच्चा देने जा रहे हो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, सोशल स्टैंडिंग क्या है, इनकम क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ जब एक इंसान एक दूसरे इंसान को बच्चा अडॉप्शन में देता है। बिकॉज आफ्टर ऑल दैट इज द चाइल्ड जिसको अप्रूव किया जा रहा है फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज बर्थ टू सम अदर फैमिली, वो अल्टीमेटली चाइल्ड है। तो उसकी वेलफेयर इज ऑफ पैरामाउंट कंसीडरेशन और कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर करे। एंड सेकेंडली, देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ मनी इन हैंड, यानी कि बच्चे की आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी है। दैट इज समथिंग प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, उस बच्चे के बदले आपने पैसा ना लिया ना दिया। देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ मनी इन हैंड। कोर्ट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, राइट। कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना है कि कोई भी पेमेंट या कोई भी रिवॉर्ड हमने ना लिया ना दिया इन कंसिडरेशन ऑफ दैट अडॉप्शन। अडॉप्शन वैलिड तरीके से हुई है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। और अगर गाइस कोर्ट को लगता है कि देयर इज एनी ब्रीच और एनी वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज प्रोविजंस, देन कोर्ट डेफिनेटली मे रिफ्यूज टू अकॉर्ड परमिशन टू दिस proposed adoption। जो adoption को गार्जियन ने प्रपोज किया है उसको रिफ्यूज कर सकता है। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बहुत बार ऐसा होगा कि कोर्ट इटसेल्फ, कोर्ट खुद ही क्या करता है, इट अलाउज, इट सैंक्शंस सर्टन पेमेंट ऑफ चार्जेस टू अ गार्जियन। अगर कोर्ट अपने बिहाफ पे गार्जियन को कुछ पेमेंट के लिए, कुछ चार्जेस के लिए पेमेंट अलाउ करता है, देन दैट इज वैलिड इनफ। क्योंकि गार्जियन आफ्टर ऑल हैज टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, उसका भी और उसके प्रॉपर्टी का भी। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस एक गार्जियन को अपनी पॉकेट से इनकर करने पड़ सकते हैं। या फिर अडॉप्शन की जब सेरेमनी होती है उस टाइम पे अगर कोई भी उसके चार्जेस लगे हैं, वो वैलिड चार्जेस हैं जो कोर्ट ने सैंक्शन करे हैं, उनकी पेमेंट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दोज पेमेंट ऑफ दोज चार्जेस, कोई और चार्ज, कोई और मनी एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज दैट विल बी फेटल टू अडॉप्शन, क्योंकि अडॉप्शन के रिक्विजिट्स का वायलेशन हुआ है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। मोरोवर गाइस, जो गार्जियन है वो किसी भी इंसान को अडॉप्शन में दे सकता है। ही मे गिव दिस चाइल्ड टू एनी वन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अपने आप को भी वो बच्चा दे सकता है। ही मे हिमसेल्फ अडॉप्ट दैट चाइल्ड। थिंग रिक्वायर्ड इज कि कोर्ट की परमिशन ग्रांट हो जानी चाहिए, एंड दैट इज अप टू द कोर्ट कि कोर्ट को परमिशन देनी है या नहीं देनी है। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो सेक्शन 9 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज अबाउट लेजिटिमेसी एंड इलेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड। जिस बच्चे को आप अडॉप्शन में देते हो उसकी लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी पे एक बहुत सवाल उठता है। वो ये है कि अगर तो कोई बच्चा लेजिटिमेट है गाइज, लेजिटिमेट चाइल्ड का अंडरस्टूड है कि अगर फादर एंड मदर दोनों अलाइव हैं तो दोनों के पास इक्वल राइट होता है टू गिव दैट चाइल्ड इन अडॉप्शन। बट गाइज, एज यू माइट रिमेंबर कि सेक्शन 7 एंड 8 में हमने घीसालाल वर्सेस धापूबाई 2011 का केस डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया कि ऑल्दो फादर एंड मदर दे हैव इक्वल राइट्स, बट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एज फार एज लेजिटिमेट चाइल्ड इज कंसर्न तो वो फादर को दिया जाता है। फादर ही अपने नाम पे अडॉप्शन लेते हैं और वही अपने नाम पे अडॉप्शन देते हैं। मदर के पास ऑल्दो इक्वल राइट होता है, बट इट इज नॉट द मदर जो अडॉप्शन में देगी या लेगी इन हर ओन नेम बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। इंस्टेड वाइस वर्सा होता है कि होगा क्या, फादर जो है वो बच्चे को अडॉप्शन में देंगे या लेंगे अपने खुद के नाम पे बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। लेजिटिमेट चाइल्ड के सिचुएशन में यही होगा। जब तक बच्चा लेजिटिमेट है, उसके फादर अलाइव हैं, मदर के पास राइट नहीं होता कि वो बच्चे को अडॉप्शन में देगी। उसका कंसेंट लेना जरूरी है, लेकिन शी कैन नॉट डू सो इन हर ओन नेम। इट इज ओनली आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट चाइल्ड्स फादर, जब वो विडो हो जाएगी या वो डिवोर्सी है, कि मदर के पास वो राइट आएगा। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेजिटिमेट चाइल्ड। व्हाट अबाउट अगर एक बच्चा इलेजिटिमेट है, तो गाइज इलेजिटिमेट चाइल्ड की सिचुएशन में उस केस में हमेशा मदर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने आपको बताया था गार्जियनशिप के सिचुएशन में भी क्या होगा, ऑल्दो एक बच्चे का नेचुरल गार्जियन उसका फादर होता है एंड आफ्टर फादर मदर होती है, लेकिन गाइज इलेजिटिमेट चाइल्ड की सिचुएशन में डिफरेंट होता है। इलेजिटिमेट चाइल्ड अगर वो है तो उसकी नेचुरल गार्जियन मदर रहती है एंड आफ्टर मदर फादर होते हैं। वही यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर कोई बच्चा इलेजिटिमेट है तो उसकी मदर के पास सिर्फ और सिर्फ होल सोल राइट मदर के पास होगा टू गिव हर चाइल्ड इन अडॉप्शन।
और वहाँ पे उसके हस्बैंड का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो हस्बैंड है वो प्यूटेटिव फादर होगा, वो स्टेप फादर होगा। जो बच्चा गाइज इलेजिटिमेट होता है उसके फादर को आप स्टेप फादर कहते हो, स्टेप मदर कहते हो, तो स्टेप फादर इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूटेटिव फादर। तो प्यूटेटिव फादर का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है अगर वो बच्चा इलेजिटिमेट है। मदर अपने ही बिहाफ पे, अपने ही नाम पे अडॉप्शन में बच्चे को दे सकती है, लेकिन अगर वही वो लेजिटिमेट चाइल्ड है तो वहाँ पे फादर को प्रेफरेंस मिलेगी, मदर को नहीं मिलेगी, उनका कंसेंट लेना वहाँ पे ज़रूरी होगा। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो सेक्शन 9 में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि कौन ऐसा इंसान है जो केपेबल है ऑफ गिविंग अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, कौन कौन है फादर, मदर एंड गार्जियन। बोथ ऑफ देम हैव टू बी बायोलॉजिकल, दे कैन नॉट बी अडॉप्टिव। इन केस ऑफ लेजिटिमेट फादर को प्रेफरेंस मिलती है, इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड मदर को प्रेफरेंस मिलती है, और वहाँ पे फादर का कंसेंट लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो प्यूटेटिव या स्टेप फादर है। मोरओवर दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। गार्जियन कौन होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से गार्जियन इसके हेडिंग में आते हैं, दैट इज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड। प्लस गार्जियन को कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, दिस इज मैंडेटरी। अगर उसको परमिशन मिल जाएगी ही कैन प्रोसीड फर्दर विद अडॉप्शन। और किन किन सर्कमस्टांसिस में गार्जियन इज केपेबल ऑफ गिविंग अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, I've told you those circumstances also. So guys, I hope you're very well acquainted with what section 9 talks about. I'll be coming up with section 10 very soon guys. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.